resource. And you all know that forest is how much important, and that is proved by current weather situations. You all know that how temperature is going to be rising day by day, and how it adversely affect environment, how it leads to melting of snow and ice. So for maintaining the balance in environment, for reducing the conditions of global warming, for maintaining temperature, we need to develop more and more forest area, and we need to develop more and more wildlife resources, because all components of environment is equally important in making ecological balance. Now, after studying forest and wildlife resource, here we need to know something about water. You all know that water is considered as precondition for life. Whenever we talk about life, first we need to talk about water, because without water we can't imagine about the survival of human beings, survival of plants, survival of animal life. So whenever we talk about ecosystem, whenever we talk about biosphere, we need to know about water resources, because it is precondition for life. For development of any kind of life, we need water resource in its various forms. And you know that the whole world experience different type of climate, and due to climatic also varies from place to place. Some area is water scarce area, because that is drought prone, and because that receives very low precipitation, whereas some area is very much having large amount of water, because that area may be in the place of heavy rainfall, and that area may be in the region of equatorial climate, which receives high temperature and heavy rainfall. So for making balance in the distribution of water, we need to know about water resources, water scarcities, causes of water scarcities, availability of water throughout the world, and how can we maintain the distribution of balanced distribution of water throughout the year as well as throughout the regions. So is that clear to you? सबको आवाज सही से जा रही है? Yes, ma'am. Okay. So let us start water resource. You already know that 3/4 of the Earth's surface is covered with water, but only a small proportion of its accounts for fresh water. हमारा Earth surface का करीब more than 70% area जो है वो पानी से ढका हुआ है. उसके बाद भी we are talking about water scarcity. कर रहे हैं ना water scarcity की बात? मतलब कि पूरे अर्थ का 3 हिस्सा पानी से भरा हुआ है, पानी से ढका हुआ है, यानी कि 3/4 एरिया में ओशंस है. उसके बाद भी हम लोग वाटर स्कैसिटी जो है कॉमन प्रॉब्लम है. क्या कारण है इसके पीछे? क्योंकि जो हमारा फ्रेश वाटर रिसोर्स है जिसको हम लोग यूज करते हैं, दैट इज अवेलेबल इन वेरी लिमिटेड क्वांटिटी. ठीक है ना? ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ water comes under freshwater resources, and that can be put to in use. This fresh water is mainly obtained from surface runoff groundwater that is continually being renewed and recharged through the hydrological cycle. ये फ्रेश वाटर रिसोर्स का मेजर सोर्सेस कौन कौन सा है? कोई बताएगा आप में से? ये जो हमारे पास फ्रेश वाटर रिवर, पॉन्ड, अंडरग्राउंड, मैम लेक, वेल. हाँ ठीक है. लेक, वेल्स, रिवर, पॉन्ड, अंडरग्राउंड वाटर. रिवर वाटर कहने का मतलब रनिंग वाटर, जो हम रेनफॉल रिसीव करते हैं, जब उसका मूवमेंट होता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, वो जब रेनफॉल होने के बाद पानी बहकर डिफरेंट चैनल के रूप में मिलता है, तो वो रिवर वाटर हो गया. तो रिवर वाटर, पॉन्ड्स, लेक्स, अंडरग्राउंड वाटर, ये सारे जो सोर्सेज हैं, that are the sources of fresh water, which is very limited in nature. हमारा टोटल वाटर रिसोर्स का 97% जो है सी और ओशंस के रूप में पाया जाता है, और ओनली 3% जो है वो अदर फॉर्म में पाया जाता है, चाहे तो ग्लेशियर के फॉर्म में, या अंडरग्राउंड वाटर के फॉर्म में, या रेनफॉल के रूप में, या रिवर, पॉन्ड वगैरह के रूप में. ठीक है?
और ये जो 3% है, that is continually being renewed and recharged through the hydrological cycle. So can you tell me how these freshwater resource can be renewed? कोई एक एग्जांपल बताओ. अभी हमारा कौन सा सीजन चल रहा है? समर. समर सीजन के बाद कौन सा सीजन आता है? रेनी सीजन. रेनी सीजन. ये रेनी सीजन में हमारा जितना भी अभी जो समर सीजन में स्कॉर्चिंग रेज ऑफ सन है, एकदम राइजिंग हीट जो है वो, दैट पेनिट्रेट डीप इनसाइड द अर्थ सरफेस एंड दैट ड्राइड अप वाटर रिसोर्स, पानी का लेयर को सुखा रहा है. तो ये एक बरसात हमारे यहाँ, तो इंडिया जैसे कंट्री में जो कि सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, साल में एक बार बरसात का सीजन आकर ये पानी को रिन्यू कर देता है. यही कारण है कि हम इसको वाटर को रिन्यूएबल रिसोर्स के रूप में जानते हैं. और ये जो आपका रेनफॉल होता है वो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का एक पार्ट है, जिसमें कि 3 प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं: एवापोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशंस. ठीक है, ठीक है. ऑल वाटर मूव्स विद इन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. जितना भी तरह का पानी है वो दैट मूव्स विद इन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, मतलब कि जो वो 3 प्रोसेस से होकर गुजरता है: एवापोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन, and ensure that water is a renewable resource. You might wonder that if 3/4 of the world is covered with water and water is a renewable resource, then how is it that the countries and regions around the globe suffer from water scarcity? Why is it predicted that by 2025 nearly 2 where हमारा अर्थ 3/4 पार्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर, और उसके बाद भी हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि अगर 3/4 of the earth is covered with water, then how is it possible that the major part of globe is suffered with water scarcity? अगर 3/4 water resource से cover, about 2 billion people is continuously suffering from water scarcity, despite the fact that water is a renewable resource. In spite of this fact, about 2 billion people of the world suffer from water scarcity, and many factors are responsible behind this. Let us talk about India. ठीक है, इंडिया के बारे में हम लोग बात करते हैं. तो सबसे पहला तो जो फैक्ट है वो ये है कि इंडिया रिसीव्स नियरली 4% ऑफ द ग्लोबल प्रेसिपिटेशन and ranks 133 in world in terms of water availability. अब देखो कितना 2 different situation है इंडिया के पास. इंडिया possesses और इंडिया is second most populous countries of the world but receives only 4% of global precipitation. पूरे विश्व में जितनी बारिश होती है, you already know that precipitation, rainfall, snowfall is the source of fresh water, major source of fresh water resource. और टोटल ग्लोबल प्रेसिपिटेशन का इंडिया जो है ओनली 4% रिसीव करता है, जबकि इंडिया के पास टोटल ग्लोबल पॉपुलेशन का इंडिया जो है दूसरा बड़ा देश है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन. ठीक है, इंडिया रैंक्स 133
in the world in terms of water availability. पानी के अवेलेबिलिटी पर इंडिया का रैंक 133वां है और पॉपुलेशन के टर्म्स में इंडिया का रैंक हमारे पास टोटल रिन्यूएबल वाटर रिसोर्स जो है दैट इज एस्टिमेटेड एट 1897 स्क्वायर किलोमीटर पर एनम। जो हमारा डेप्थ है, जो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो अवेलेबल है वो है 1897 स्क्वायर किलोमीटर per annum. And by 2025, it is predicted that large part of India will join countries or regions having absolute water scarcity. और जो हमारा वाटर अवेलेबिलिटी है, जो हम 4% वर्ल्ड प्रेसिपिटेशन रिसीव कर रहे हैं, और जिस तेजी से हमारा यूज जो है वाटर का फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस, फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस, फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस, फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस बढ़ता जा रहा है, ऐसा प्रिडिक्शन किया गया है कि 2025 यानी कि 2 साल बाद आते आते इंडिया भी जो है वर्ल्ड के उस कंट्रीज के लिस्ट में शामिल हो जाएगा जो कि वाटर एब्सोल्यूट वाटर स्कैर्सिटी को फेस करते हैं। तो लेट अस डिस्कस व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड इट, व्हाई India comes under water scarce region of the world. What is the basic problems? What is the basic causes behind water scarcity in India? First of all, you just write one questions which is related to the topic is what is water scarcity? Note it down. लिख रहे हो? सुनाई पड़ रहा है? पहले लिखो what is water scarcity. Water scarcity क्या है? लिखिए पहला क्वेश्चन. What do you mean by water scarcity? लिख रहे हो? Tell me yes or no. कैसे समझ में आएगा? हाँ, तो लिखिए water scarcity. Water scarcity refers to और सबको याद भी करना है और कॉपी में लिख के रखना है. Water scarcity refers to the shortage of water. Water scarcity refers to the shortage of water in terms of quantity and qualities. The shortage of water, water scarcity refers to the shortage of water in terms of quantity and quality. That means what? Quantitative aspects में भी हमारे पास कम है because we only receive 4% of global precipitation. And quality, चूंकि हमारा second most populous countries है, तो हमारे यहाँ waste generation भी maximum होता है और untreated waste का जो disposal होता है आपका fresh water resource में, that make water resource polluted in nature, and that polluted water is also one of the facts of water scarcity. So water scarcity refers to shortage of water in terms of quality and quantity. Written or not? Yes or no करके बताओगे. Yes, लिखा ma'am. है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए. What are the causes of water scarcity in India? What are the various causes of water scarcity? उसको भी लिख ही लोगे, उसके बाद हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे. What are the various causes of water scarcity? क्वेश्चन नोट किया? Yes, ma'am. हाँ, तो पहले एक बार क्वेश्चन लिख लिया, पॉइंट्स बताएंगे. पहले हम लोग देख लेते हैं फैक्ट्स.
Given the abundance and renewability of water, it is difficult to imagine that we may suffer from water scarcity. जितना वाटर रिसोर्स अवेलेबल है, जो उसका फीचर्स है कि रिन्यूएबल इन नेचर है, जो इसका फीचर्स है कि 3/4 एरिया ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर, उसमें ये इमेजिन करना कि वी आर फेसिंग वाटर स्कैसिटी, दैट इज समवॉट डिफिकल्ट इन नेचर. The moment we speak of water shortage, we immediately associate it with regions having low rainfall or those that are drought prone. We instantaneously visualize the desert of Rajasthan and women balancing many matkas, earthen pots, used for collecting and storing water and traveling long distances to get water. ये तो बहुत है, इमेजिन आप करते हैं. सोशल मीडिया में कई सारे ये में आप देखते होंगे कि किस तरीके से पानी का कमी में लोग लाइन लगाए हुए हैं बकेट लेकर. राजस्थान का डेजर्ट एरिया आपके दिमाग में आता होगा कि कैसे वहां पे लोग दूर दूर तक 1-2 किलोमीटर तक जाकर पानी भरकर और बैलेंस करके लाते हैं, जो कि वहाँ की कल्चर, वहाँ का डांस स्टाइल उसमें भी रिफ्लेक्ट होता है कि वहाँ की महिलाएं किस तरीके से अपने अर्थन पॉट्स को बैलेंस करते हुए चलती हैं. क्यों? क्योंकि वो एक बार में दूर तक जाना होता है, वाटर कलेक्ट करने के लिए टाइम टेकिंग होता है, तो वो इस तरीके से एक साथ में कितना मटका भर के ले आती है. जब कभी भी हम लोग शॉर्टेज ऑफ वाटर की बात करते हैं तो ये सब कॉमन फीचर्स है. आप कभी स्कूल आने के समय में पुलिस लाइन का एरिया से आते होंगे तो वहां पे देखते होंगे कि लाइन लगा हुआ होता है वहां पे म्यूनिसपैलिटी के टैप पर, और ये शो करता है, ये भीड़ और ये झगड़ा और ये लाइन शो करता है कि स्टिल वी आर फेसिंग वाटर स्कैरसिटी इन मेनी एरियाज. एक तरफ तो हमारा कंफर्ट लग्जरीज डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ वाटर शॉर्टेज, क्योंकि यूज बढ़ रहा है तो वाटर स्कैरसिटी भी बढ़ता जा रहा है. तो ये सब कॉमन फिगर जो है हम लोगों के दिमाग में आ जाता है व्हेनेवर वी टॉक अबाउट वाटर स्कैरसिटी. ठीक है. ग्राउंड लेवल भी तो घटते जा रहा हाँ, ग्राउंड लेवल घटता जा रहा है. ग्राउंड लेवल घटने के पीछे भी क्या कारण है बेटा? जंगल कट रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं, घर बनते जा रहे हैं, रोड बनते जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज बनता जा रहा है, जो रिलीज हो रहा है, पॉल्यूशन लेवल बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से हमारा ग्रीनरी डे बाय डे कम हो रहा है. तो ग्रीनरी कम हो रहा है तो जो हमारा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है. अभी ही देखो ना, अभी का सिचुएशन में नॉर्मली क्या होता है, मानसून कब ब्रेक करता है? फर्स्ट वीक ऑफ जून में. हम लोग 3rd वीक ऑफ जून में इंटर कर चुके हैं, ये है ना. तो अभी तक मानसून ब्रेक हुआ है? नो मैम. No, ma'am. तो सो मेनी फैक्टर्स बिहाइंड इट. वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स है. हमारा 4 महीने का सीजन जो है वो रेनी सीजन के रूप में जाना जाता है, लेकिन 1 महीना ऐसे ही पार हो गया. तो जो 4 महीने में जो हम पानी रिसीव करते हैं वो 3 महीने में तो कम होगा ही. और मान लो जुलाई में भी नहीं हुआ और हाफ जुलाई के बाद हुआ, तो ऐसे ही समझ लो कि 1.5 महीने में जो हम बारिश रिसीव करते हैं वो कहाँ जाएगा. कभी कभी एक्सेसिव गर्मी है, इतना ज्यादा बारिश हो जाता है कि आपका नली गली सब बराबर होकर पॉल्यूटेड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है. वाटर पर्कोलेशन के लिए जिस रेट में और जिस ये में वाटर मतलब प्रेसिपिटेशन होना चाहिए वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है. क्यों? नेचर का इम्बैलेंसेस की वजह से, राइजिंग लेवल ऑफ पॉल्यूशन की वजह से. तो भले ही वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, भले ही हमारे यहाँ रेनफॉल होता है हर साल, 4 महीने का सीजन, 4 मंथ जो है वो डेडिकेटेड है रेनी सीजन के रूप में, लेकिन देखो अभी ये 1 महीना पूरा पार होने जा रहा है. तो ये रिन्यूएबिलिटी में भी आपका डिस्टरबेंस है. ठीक है. So the availability of water resources varies over space and time, mainly due to variation in seasonal and annual precipitation. ये underline करेंगे, but water scarcity in most cases is caused by over exploitation, excessive use and unequal access to water among different social groups. आप कहोगे कि ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन क्या हो रहा है? ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है हमारे आप जैसे कि प्यास लगा है, हाँ, पानी पी रहे हैं, पानी लिए ग्लास में, प्यास लगा, आधा गिलास पानी पिए और आधा गिलास फेंक दिए. आधा गिलास का जरूरत था, आधा गिलास वेस्ट किए. ठीक है. हमारे यहाँ ऐसे तो आपका म्यूनिसपैलिटी भी है जो कि वाटर सप्लाई करता है, लेकिन देखोगे कि हर एक घर में जो है वो मैक्सिमम ट्यूबवेल्स लग गया है, समरसेबल लग गया है.
टंकी भर रहा है, टंकी का पानी गिर रहा है और मोटर ऑन है, ये क्या है? वेदर इट इज एग्जाम्पल ऑफ ओवर एक्सप्लॉयटेशन और नॉट। जहाँ जितना पानी Yes, में ma'am. काम चल जाना चाहिए उतना के जगह हम उसका डबल ऐसे ही यूज कर रहे हैं। शावर खोल दिए हैं, बकेट लगा दिए हैं, बकेट और मग से नहाने के बजाय शावर खोल कर साबुन लगा रहे हैं, शावर खुला हुआ है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है? वाइज यूटिलाइजेशन तो नहीं हो रहा है। यहाँ पे बेसिन में नल है, 10 जगह नल का पॉइंट है। पहले लोग जब कुआं से पानी भरते थे तो 4 बकेट पानी का जरूरत होता था, तो कोशिश करते थे कि 3 बाल्टी में ही काम कर लें। और आज जब समरसेबल लग गया है, शावर लग गया है, मॉडर्न लाइफ स्टाइल आ गया है, तो बस उसको हम लोग मिसयूज कर रहे हैं। तो ओवर मैम अब एक्सप्लॉयटेशन तो इस। अब तो गाय भी और मैम दूसरा, मोटर से नहाता है। हाँ गाय भी गाय भी मोटर से नहा रहा है। हाँ, तो सोच लो, मतलब कि जहां पे हम 1 बाल्टी में काम करते थे उसके लिए अब 4 बाल्टी यूज कर रहे हैं। और सोच लो कि सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज है, रिसीव करते हैं 4% ग्लोबल प्रेसिपिटेशन, और यूज कितना कर रहे हैं मॉडर्न लाइफ स्टाइल में। तो क्या डेवलपमेंट हमको ये बता रहा है कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन और वेस्टेज करें? डेवलपमेंट हमारे कंफर्ट्स के लिए है, ना कि वेस्टेज के लिए है। सो यहाँ पे वाटर स्कैसिटी और वाटर रिसोर्स बढ़ाने के पीछे मेन मोटिव क्या है कि ईच एंड एवरी इंडिविजुअल must realize the importance of water, so that from every step, from every individual, water conservation can be done. सिर्फ आपको खुद ही कंजर्व नहीं करना है, बल्कि अपने आस पड़ोस सब जगह ये अवेयरनेस जनरेट करना है कि कैसे हमको वाटर का वाइज और जुडिशियस यूटिलाइजेशन करना चाहिए, ताकि हम आने वाले वाटर स्कैसिटी को रोक सकें। ठीक है, तो अब आप लिख सकते हैं व्हाट आर द वेरियस कॉजेज ऑफ वाटर स्कैसिटी। सबसे पहले लिखो फर्स्ट पॉइंट। पहला पॉइंट में लिखो वेरिएशन इन सीजनल एंड रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, और वेरिएशन इन सीजनल एंड रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। फर्स्ट पॉइंट इज कॉजेज ऑफ वाटर स्कैसिटी में आपका फर्स्ट पॉइंट है वेरिएशंस इन सीजनल एंड रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल। लिख लोगे तो बोलोगे। Yes, ma'am. दूसरा लिखो ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर रिसोर्स, और इसको एक्सप्लेन आपको खुद करना है, जैसा कि अभी हम बताए हैं। ये तो एक एग्जाम्पल, एक बोला ना कि हम अपने पेट को भी जो है जो एनिमल्स हैं उसको भी हम लोग किस तरीके से मोटर से नहला रहे हैं। ठीक है, तो आप अपने तरीके से इसको एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट में लिखेंगे एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर ड्यू टू राइजिंग डेवलपमेंट। एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर ड्यू टू मोर एंड मोर डेवलपमेंट। जैसे क्या था कि पहले हमारा लाइफ बहुत ही सिंपल था, ठीक है ना, और हमारा जो बेसिक नीड्स था वो भी था भोजन वस्त्र आवास तक ही लिमिटेड। उस समय क्या करते थे, पीने के लिए पानी चाहिए होता था या खेती के लिए पानी चाहिए होता था। आजकल क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन तेजी से होता जा रहा है, जो और हर इंडस्ट्रीज में बिना पानी का हम उसके डेवलपमेंट की बात कर नहीं सकते हैं। अर्बनाइजेशन हो रहा है, टाउनशिप डेवलपमेंट है, और जब हम टाउनशिप की बात करते हैं, अर्बनाइजेशन, अर्बन सेंटर्स की बात करते हैं, तो वहां पे लाइफ मोर कंफर्टेबल इन नेचर है। मोर कंफर्ट में भी आपका एक्सेसिव यूज हो रहा है। ठीक है, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जितने भी हैं उसमें भी पानी का मैक्सिमम यूज हो रहा है। तो ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो unequal access to water among different social groups. नेक्स्ट पॉइंट है unequal access to water, unequal access to water among different social groups.
Unequal access of water among different social groups. कोई बताएगा what does this mean? Unequal access to water. कोई सोच के बताएगा? इसके बारे में कोई जवाब देने का कष्ट करेंगे? इस पॉइंट को एक्सप्लेन करो. एनीवन? चलो इंडिपेंडेंस के बाद या इंडिपेंडेंस के पहले का गांव का कल्पना करो. 9 में पढ़े हो स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, पढ़े हैं ना? Yes, ma'am. इकोनॉमिक्स में स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, उसमें आप पढ़े होंगे कि डिफरेंट Yes. कैटेगरी ऑफ पीपल और डिफरेंट लैंड होल्डिंग्स, 50% से ज्यादा पर कुछ पर्सन्स का होल्डिंग था, मतलब कब्जा, और जो 1/3 एरिया में 3/4 ऑफ पॉपुलेशन जो है वो डिपेंड करते हैं. सेम सिचुएशंस आल्सो फाउंड इन वाटर अवेलेबिलिटी. अब एक गांव का एक बड़ा जमींदार है, एक बड़ा लैंडलॉर्ड्स है, आ गया. तो कभी एक वैसा गांव को इमेजिन करो जहां पर 75% वहां की आबादी जो है गांव में जो 2-3 वेल्स हैं, कुएं हैं, उस पर डिपेंड कर रहा है, और वहां की 25% पॉपुलेशन ऐसा है जिनके घर में एक एक घर में 2-2 3-3 कुएं हैं. ठीक है, एक गांव में मान लो 10 कुआं है, जिसमें 2 कुआं पर या 4 कुआं पर 75% पॉपुलेशन का प्रेशर है, उससे पानी वो लेते हैं, और बाकी का 6 कुएं पर 25% पॉपुलेशन डिपेंड करता है. कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनको गांव के बाहर एक आध कुआं है, उसी पर डिपेंड होना पड़ता है. तो यहाँ पे अनइक्वल एक्सेस दिख रहा है. एक जगह लाइन लगा हुआ है, भीड़ लगा हुआ है पानी निकाल कर 2 बाल्टी लेने के लिए, और एक जगह इतना है कि कोई उससे पानी निकालने वाला नहीं है. ठीक है, पुलिस लाइन का सिचुएशन देखो, वहां पर लोगों का भीड़, और इधर में आपका आ जाओ एक ऐसा घर जहाँ पे समरसेबल भी है, जहाँ पे म्यूनिसिपैलिटीज का भी वाटर टैप लगा हुआ है, अपना भी बोरिंग वेल्स है, उनका कंडीशंस, और पुलिस लाइन में जो पब्लिक टैप पर जो लाइन लगा हुआ भीड़ है उसका कंडीशंस. समझ में आ रहा है? अनइक्वल एक्सेस. किसी के पास बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी है, वो कभी भी उसको यूज कर सकता है, और कोई सिर्फ पानी के लिए सुबह उठ करके लाइन लगाया है, 2 घंटा डिवोट किया है ताकि उसको 2 बाल्टी पानी मिल जाए. ये शो करता है अनइक्वल एक्सेस टू वाटर अमंग डिफरेंट social groups. Where is then what